Very good afternoon to everyone. Okay, since I'm coming from the business side, also time is also telling me that I should directly come to the agenda. So first of all, I'm going to invite the President of Rotary Club of Kanpur, Rotarian Anil Sharan Garg. Please come here on the dais, please. And I request all of you to give him a very good round of applause. I was intending to invite Ramanji at last, but since I have already invited Ramanji, okay, welcome Ramanji. And next I'm going to invite Rotarian Gaurav Agrawal Jain to please come over here as a representative and officiating secretary of the Rotary Club of Kanpur. Often we remain obsessed with the idea that wellness is connected only with the physical. I request the secretary of the Rotary Club of Kanpur, Rotarian Gaurav ji, to please come over here on the dais, please. Okay, let me introduce the Raman Nagar who has come all the way from the city of Ludhiana. He is a, of course, trainer of the trainer. He is coming from a business world. He is the founder director of the Connect, the Global Connect Private Limited. He has conducted hundreds of training programs in business area. He is a business guru also. We always call him as a business guru. Without taking much of your time, I am directly inviting Raman Nagar, and I request all of you to give a very wonderful and very thunderous round of applause. And Ramanji, please take the time without taking further time, please. सामने जाऊंगा दिनेश भैया मैं यहाँ Good afternoon. I understand how comfortable it will be for you to sit here. क्योंकि बाहर सुनते हैं कहीं खाना लगा हुआ है और उसकी खुशबू वहां तक आ रही है. But anyway, Himadri told me 45 minutes. I'll try to stick to 45 minutes only. The topic that has given to me is wellness through wealth management. I was trying to understand what exactly wealth is. ये दौलत है क्या? What wealth is? विकिपीडिया में मैंने सर्च किया तो वहां से डेफिनेशन ये निकली. Says wealth is the abundance of valuable financial assets or physical possessions which can be converted into a form that can be used for transactions. All materialistic, right? ये विकिपीडिया में लिखा है और ये शायद हम सब लोगों के दिमाग में भी वही लिखा. Exactly this is what me, you, मेरे माँ बाप, सब लोग जो हमारी आने वाली जनरेशंस, जो हमसे पहले वाली जनरेशंस, everybody they knew wealth like this only. But the biggest problem starts from there only. When I consider wealth as a materialistic affluence, कितना सारा पैसा, कितनी सारी दौलत, जिस दिन मैं उसको वेल्थ को यही समझता हूं, समस्या मेरी वहां से शुरू होती है. Wellness starts with the clarity of what does it actually mean to you. Wealth आपके लिए क्या, उसकी आपकी definition क्या है? When I say for me wealth is say a billion of rupees, a billion of dollars, 10, 12, 15 बहुत बड़े बड़े मॉल्स, बहुत सारे बंगलोज, बहुत सारी गाड़ियां, it's my definition. But at the same time,
फॉर यू और दिनेश भैया जो इनका डेफिनेशन कुछ और हो सकता है। मे बी देयर इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन जो हमें बहुत बार हमारी एक प्रार्थना में भी सिखाया गया है कि भगवान इतना दीजिए जामे कटू समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। वेल्थ तो वो भी है, वेल्थ तो वो भी है कि जब जरूरत पड़े तो हाथ ना फैलाना पड़े, जब जरूरत पड़े मुझे फॉरेन टूर पे जाना है, आई हैव दैट मनी विद मी, जब जरूरत पड़े मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, आई हैव दैट मनी विद मी, जब जरूरत पड़े मुझे मेरी बीवी के लिए खुश करने के लिए शॉपिंग करनी है, आई हैव दैट मनी फॉर मी। बट इतनी नहीं कि मुझे सोचना पड़े इसे छुपा के कहां रखूं, देन इट इज ए प्रॉब्लम, तब समस्या है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कॉज इलनेस। वेल्थ की गलत समझ जो है वो वेलनेस को इलनेस में कन्वर्ट करती है, तब समस्या शुरू होती है। कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें वेलनेस के, जो इलनेस के सिम्टम्स हैं, वो कब हमें पता चलता है कि नहीं यार मैं तो धन के मामले में बीमार हो गया हूं या हो गई हूं। देयर आर फ्यू सिम्टम्स, और भी बहुत है, कुछ एक सिम्टम्स है। माइंडलेस सेविंग, मैं पैसे जमा कर रहा हूं, मैं मनी जमा कर रहा हूं और जमा करता जा रहा हूं और मुझे किसी ने पूछ लिया अरे ये क्या करोगे इसका, तो वो मुझे पता नहीं, नो ऑब्जेक्टिव, पैसे हैं तो हैं बस, दैट्स इट। क्यों है, क्यों जमा किए हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। माइंडलेस सेविंग, ये सिकनेस की स्टेज है। ओवर एक्यूमुलेशन, आजकल तो जो LIC वाले और म्यूचुअल फंड्स वाले जितने वेल्थ मैनेजर्स हैं, दे टेल यू को आपको आपकी जिंदगी में पैसा चाहिए कितना। मुझे पानी चाहिए, आई एम सो सॉरी, मेरे पंजाब की आबो हवा ने मेरा गला खराब किया है। वो आपको बता देते हैं कि आपको आपकी तमाम जिंदगी में पैसा चाहिए कितना, हाउ मच मनी यू रिक्वायर। आप अपने लाइफ गोल्स बताते हैं, आप अपनी फैमिली बताते हैं, आप अपनी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज बताते हैं। दे टेल इतना चाहिए बस, दैट्स इट। और मैं उससे कई गुना ज्यादा इकट्ठा किए रहता हूं। तो ये सिकनेस है, ये इलनेस है। When spending is painful for me, खर्चा करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, चुभता है। मेरा बच्चा कहता है डैड आई वांट, पागल है तू, बाइक क्यों चाहिए, जब मैं तेरे जैसा था पैदल जाता था, साइकिल पे जाता। मैं 50 एक्सक्यूजेज उसको देता हूं लेकिन खर्चा नहीं करता, बिकॉज इट्स पेनफुल फॉर मी, मुझे तकलीफ देता है वो। इट्स एन इलनेस, ये बीमारी है। गिविंग इज टू एगनाइजिंग, किसी को देना, मेरा हाथ ऐसे होता ही नहीं, किसी को देना बहुत बहुत दर्द भरा है, वो एग्नी है। मेरी बीवी सुबह उठ के द्वार पे खड़े हुए किसी भिखारी को देने जाती है तो मैं 20 बहाने बनाता हूं, अरे तू पागल है, इनको भिखारियों को देती, और कहीं बहुत कुछ बोलता हूं। बट इनसाइड आई नो that 10 rupees, 20 rupees she is giving to that beggar is painful for me. मेरे लिए वो एगनी है, मुझे देने में दुख होता है। It's illness, ये बीमारी है। Unable to take money decisions, पैसे के बारे में डिसीजन लेने में मुझे बहुत बार समस्या होती है, वो आसान नहीं। मुझे पिज्जा खरीदना, पिज्जा हट पे कितने का है, डोमिनोज पे कितने का, मैं 4 साइड वहां पे, इट्स अ स्मॉल डिसीजन, बट स्टिल मुझे समस्या हो रही है। बिकॉज साइकोलॉजिकली आई एम सो बैडली डिजाइंड अबाउट मनी कि मुझे अगर 10-15 रुपए कहीं फालतू खर्च करने पड़ जाए तो मुझे समझ नहीं आती मैं लुट तो नहीं गया।
एक डाउट मेरे दिमाग में रहता है। खर्चा करने के 10 दिन बाद भी मैं अपने दोस्त से पूछा, अरे तू पिज्जा कितने का खाता है? बिकॉज देयर इज अ डाउट, इट्स अ सिकनेस। मैं उससे पूछ रहा हूं, वो उसने अगर गलती से कह दिया कि तुमने 30, अरे नहीं मैंने 280 का लिया था, अब मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सेविंग। मुझे सेव करना है एट एनी कॉस्ट, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी भी खराब हो जाए। अब मैं जो पैंट है वो 3 साल से पहन रहा हूं, अब वो फट गई, बीवी को बोला यहां सिलाई कर दे, नहीं लूंगा। क्यों लेना भाई, वही ले रहा हूं। गाड़ी मेरी वो बाबा के जमाने की, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरा जो बीमा और कितने शेयर, कितना पैसा, बट व्हाट इज प्रेजेंट, मेरी जिंदगी कैसी है? नोबडी वुड लाइक, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी जीना नहीं चाहता, इसे ये कैसा बाप मुझे मिला। सेविंग फॉर कमिंग जनरेशंस। मैं अपने बच्चा तो ठीक है, उसके बच्चे और उसका बच्चा, अपने बच्चे के पोते के बारे में भी सोच रहा हूं। जब वो बहुत हालत खराब, आप समझ लीजिए कि ये कैंसर वाली स्टेज है। दिस इज दैट इलनेस। अगर ये इन सिम्टम में से कोई एक भी है तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब जो बच्चे यहां मेरे सामने बैठे हैं, आप कल के धनवान हैं, आने वाले समय के धनवान हैं। तो अगर एक भी सिम्टम कहीं भी आपको लगे, दैट्स एन अलार्म। ये वेलनेस नहीं है, वो इलनेस की शुरुआत है। Please remember, the quality of your life is directly proportional to the quality of your self-talk. आप खुद से बात क्या करते हैं, एग्जैक्टली आपकी जिंदगी वैसी होती है। अगर मैं आपके खुद को कहता हूं, अरे यार ये दिनेश भैया के पास एक प्लॉट है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, मैं कोई जुगाड़ करके अगर लूट लूं तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाए। My self-talk quality is bad. My quality of my life will definitely be bad. वो खराब होने वाली है। मैं पैसा किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता हूं, and every time when I talk to myself, I tell, get it come what may, कितना भी बुरा हो जाए कर लो, तो मेरी जिंदगी वैसी खराब हो जाएगी। My life will be equally bad. So what I need to do, क्या करना पड़ेगा मुझे? I have to train myself to talk healthy affluence. Healthy affluence. Healthy affluence is एक नया शब्द, नई फ्रेज है जो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आने वाले समय में आप wealth creator हो. If your wealth is not the healthy affluence, that wealth is of no use. वो किसी काम की नहीं है. Let me tell you, I'll give you a password. आजकल वो पासवर्ड का जमाना है ना, अब आप लोगों को पासवर्ड समझ आता है बहुत आसानी से. So I'll give you a password for healthy affluence. The wellness password ES2IG. इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी रखना सोच लीजिए. इट्स वेरी सिंपल. ES2IG. दिस इज द पासवर्ड. अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या. ES2IG is 5 very simple attitudes. Ethical, sensible, systematic, intelligent and generous. 5 simple attitudes. लेकिन ये किसके लिए है? The first is ethical is what?
एथिकल अर्निंग, जो मेरा पैसा, जो मेरी कमाई आ रही है, क्या वो एथिकल है? क्या वो मॉरल तरीके से आ रही है? क्या वो लेजिटिमेट है? क्या वो लीगल है? If that money is coming from the ethical sources, that is the sign of wellness. पहला साइन वेलनेस का। एक चीज याद रखिए, मनी इज द मीन्स, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। मीन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधन है। साधन है। पैसा एक साधन है। पैसा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसको अपने दिल में इस पर लिख लीजिए कि जिस दिन पैसा ऑब्जेक्टिव हो गया, क्राइम विल क्रीप इन, जुर्म आ जाएगा। आई एम ए बिजनेसमैन। इमेजिन मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पैसा, मैंने डिसाइड कर लिया व्हाट विल हैपन टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आई मेक। क्या होगा? वो नीचे जाने शुरू हो जाएंगे, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। मैं टैक्स चोरी करना शुरू कर दूंगा, मैं अपने कस्टमर को जो लूटना शुरू कर दूंगा, मैं अपने वेंडर का पैसा मारना शुरू कर दूंगा, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज मनी। कहीं से भी आए, द क्राइम विल क्रीप इन। डॉक्टर, द मोमेंट वो डॉक्टर रहता नहीं, वो डॉक्टर रहता नहीं, बिकॉज देन क्राइम क्रीप्स इन। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे, विल दैट मनी स्टॉप? मनी विल कम ऑटोमेटिकली। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, वो रुकेगी नहीं, लेकिन दैट मनी विल बी एथिकल, वो एथिकल होगा। सो फर्स्ट इज एथिकल, सेकंड इज सेंसिबल स्पेंडिंग। मैं खर्च कहां कर रहा हूं? When the money is ethical, the spending has to be sensible. Okay, tell me, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पूरी दुनिया के पास से 1 लाख करोड़ रुपया है, दैट इज द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, और मैं दो लोगों को आपको मिलाता हूं, आप बताइए कि किसके पास ये पैसा होना चाहिए? ये दूसरे वाले के पास क्यों नहीं? बिकॉज हिज स्पेंडिंग डिफरेंट। उसकी जो स्पेंडिंग है इट्स नॉट सेंसिबल। इफ दैट एंटायर मनी, different. That's why I always say अच्छे लोगों के पास आपका अधिकार है। You all are good people. You should possess the wealth, because if the money goes to a doctor, तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हॉस्पिटल बना लेगा, बहुत खूबसूरत बना लेगा, बट ही विल मेक ए हॉस्पिटल। और वो एक डाकू के पास he will buy guns. It's a sensible spending. जहां sensible spending है, आप सोचिए कि मेरी स्पेंडिंग कहां जा रही है। When my spending is sensible, the wellness will stay. Systematic saving. I keep on, मैंने वो जब सिम्टम्स आपसे डिस्कस किए तो आई थॉट कि सेविंग अगर मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं, वो इलनेस में जाएगी। But it has to be a regular system of coming into that saving kitty, and the same saving has to be intelligently invested also. जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए 1, तब शायद आप लोगों को याद होगा, देयर वाज ए बिग रिसेशन।
यूएस के बैंक्स फेल हो गए, यूरोप के बैंक फेल हो गए और इकोनॉमी वहां बहुत प्रॉब्लम में आ गई। बट द इकोनॉमी इन इंडिया वो हिली नहीं थी, उसको कोई समस्या नहीं हुई। यू नो व्हाई? द बिगेस्ट रीजन क्या था? देयर आर टू डिफरेंट कल्चर्स ऑफ टू मनी कल्चर्स, दो डिफरेंट मनी कल्चर्स हैं। वेस्टर्न मनी कल्चर क्या है? दे स्पेंड फर्स्ट, वो पहले खर्च करते हैं, मीन्स फिर वो बोरो करते हैं। क्रेडिट कार्ड, कुछ चीज खरीदने की जरूरत हुई, जेब में पैसा है कि नहीं है, कार्ड जरूर है। एवरी यूरोपियन, एवरी अमेरिकन, दे हैव ए कार्ड, कार्ड है उनके पास। दे विल गो, दे विल बाई, दे विल यूज कार्ड, इट्स बोरोड, बोरो, फिर वो वापस करते हैं, रीपे, दे रीपे। सो दिस इज द सर्कल। और इस सर्कल में अगर वर्क चला गया तो सारा कुछ हिल जाता। देयर व्हाट हैपेंड, वो वर्क चला गया, नौकरियां नहीं रही, तो सब कार्ड वाला पैसा फेल हो गया, बैंक टम्बल्ड डाउन। एंड इंडियन कल्चर, हम पहले काम करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर सेव करते हैं, देन वी स्पेंड। सेविंग कम्स बिफोर स्पेंडिंग। हमारे यहां सब आपके माँ बाप भी पहले कहते हैं, अगर 100 कमाओगे तो 90 खर्च करना, 10 रख लेना। सेविंग कम्स फर्स्ट। एंड एन एंटरप्रेन्योर्स वर्क कल्चर इज, वो जो सेव किया है दैट गेट्स इन्वेस्टेड, फिर वो इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया जाता है। दैट इन्वेस्टमेंट अगेन इन्वेस्ट हो रहा है, हर महीने वो अर्न हो रहा है, एंड दैट जनरेट्स, तब आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। If the source is ethical, if the spending is sensible, if the saving is done in the right way and it's properly invested, the wealth has to be generated. वो नहीं रुकेगी, वो जनरेट हो जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी, वो मिल जाएगी आपको। नाउ टू थिंग्स अबाउट इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक मार्केट में, बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रिटर्न, मनी। ऑफ कोर्स मनी स्पेंड कर, इन्वेस्ट करेंगे तो मनी मिलेगी। बट इफ यू स्पेंड इन पीपल, इन्वेस्ट इन पीपल, अगर आप लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा? ब्लेसिंग्स, दुआएं। तो देयर कम्स, प्लीज अंडरस्टैंड, जो आपका पैसा है वो हेल्दी बेबीज की तरह ग्रो होना चाहिए। और उसके साथ एक कॉशन भी है, रिमेंबर ओनली द लेजिटिमेट बच्चे जो हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है, वैसे ही लेजिटिमेट जो पैसा है उसी को रिस्पेक्ट मिलती है। जितना कब मेरे पास पैसा अकमुलेट होता है, आई ऑलवेज हैव टू कीप वेदर इट इज लेजिटिमेट, क्या ये सही है। अर्निंग मोर डज नॉट गारंटी वेल्थ क्रिएशन। एक आप समझ लीजिए, ज्यादा कमाई ये गारंटी कतई नहीं करती कि आपके पास वेल्थ क्रिएट होगी। अगर वो सेंसिबल स्पेंडिंग नहीं हुआ तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अगर सिस्टमेटिक सेविंग नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अगर वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सो अर्निंग डज नॉट गारंटी कि वेल्थ क्रिएट होगी। एट द सेम टाइम हैविंग क्रिएटेड वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। अगर वेल्थ क्रिएट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशी भी मिल जाएगी, हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो भी उसका मतलब नहीं, वो गारंटी नहीं करता है। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेनरस गिविंग। एम आई जेनरसली गिविंग? जितना मेरे पास
उसका मतलब ये ही है कि वो क्या वो गिविंग जो है वो जेनरस है। I give to the deserving, I give to the needy, I give to people who really want। और जब मैं देता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है, दुख नहीं होता, एग्नी नहीं होती, एग्नी नहीं होती। Then it is generous giving. End of the day, please understand, material wealth is immaterial। जो मटेरियल वेल्थ है अल्टीमेटली वो इमटेरियल रहेगी। मेरे अकाउंट में 2000 करोड़ रुपया है, मेरी एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन जितनी मर्जी खा रहे, जिस दिन मेरी हवा निकल गई, मैं चला गया, विल दैट मैटर? विल दैट मैटर? बिकॉज दैट इज अ perishable wealth। Try creating wealth that lasts longer and brings happiness to humanity। 3 लोगों से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। 2 टीचर्स हैं और एक डॉक्टर है। ये लोग जिन्होंने अपने लिए वेल्थ की एक डिफरेंट डेफिनेशन बना के रखी, दे मेड अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। डॉक्टर महेंद्र सिंह मेरे माय अंकल्स फ्रेंड है, मेरे घर के पास रहते हैं लुधियाना में। ही इज 82, 82-83 साल के होंगे, 83 years। दिस मैन रिटायर्ड एज अ वेटनरी सर्जन फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ये वहां से रिटायर हुए। ही हैड लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा था। ही हैड क्योंकि इनकी बैकग्राउंड देवर फार्मर्स, तो उनके पास जमीन भी थी। इसका बच्चा इनके पास आया, बेटा आया, उसने बोला कि पापा चलिए आप मेरे साथ रहिए। एंड ही इज वेरी ब्लंट, बहुत कड़वा बोलते हैं ये। ही सेड क्यों भाई, मैं क्यों रहूं तेरे साथ? मेरे पैसे चाहिए तेरे को? नहीं दूंगा तेरे को डॉक्टर बना दिया, तू कमा, मैं रहूंगा आराम से। हिज वाइफ डाइड। जब रिटायर हुए अगले साल उनकी बीवी उनको छोड़ के चली, अकेले रहते। व्हाट ही डिड, he started going to a village called Narangwal। It is near Ludhiana। वहां जाना शुरू किया। वहां पे ब्रिकलिंग्स है, जो ईंट के भट्टे होते हैं, वो वहां बहुत सारे भट्टे हैं। और उन भट्टों की जो लेबर है वो 12 घंटे बेसिस पे काम करते जब काम चलता है, तो उनको बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। What Dr. महेंद्र सिंह did, he goes with उन बच्चों को लेके आना, उनके लिए उसने वहां पे एक मकान ले लिया, उनको लेके आते, उनको नहलाते, उनको साफ सुफ क्लीन करते, फिर उनको पढ़ाते, उनके लिए खाना बनाते उनको, और शाम को 5 बजे उन बच्चों को छोड़ के आते। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। अब वो अकेले थे, तो नारंगवाल गांव से उन्होंने एक विडो बुढ़िया को उठा के ले आए अपने घर। एंड शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ उसके घर का कोई कपड़े धोने, कोई छोटा मोटा काम, वो उसने देखना शुरू किया। और ये सुबह उठ के 50 रोटियां रोज बनाते, 50 रोटियां रोज बनाते हैं, और अपने थैले में डाल के पैदल चलते हैं। पैदल मेरे घर से बस स्टैंड इज अबाउट 5 किलोमीटर। उस 5 किलोमीटर में कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो उसका इंतजार करते हैं। वो उनको कुत्तों को रोटी खिलाते खिलाते वो चले जाते। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश, इतनी वो फ्लडेड, इतना पानी। तो मैं मॉर्निंग में अपनी गाड़ी में कहीं बाहर गया हुआ था, तो व्हेन आई वाज कमिंग तो बहुत ज्यादा फ्लडेड थी। तो आई सॉ महेंद्र सिंह अंकल, ही वाज कमिंग। आई स्टॉप्ड माय कार। आई सेड अंकल आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ आता हूं। तो वो कड़वा तो बोलते ही है, और जब तू नहीं होगा फिर मैं कैसे जाऊंगा, तू जा, मैं चला जाऊंगा। इसे मैंने कहा अंकल आप बीमार हो जाओगे। एंड दिस डायलॉग he said, I cannot afford the luxury of falling sick। He said 50 कुत्ते हर रोज मेरा इंतजार करते हैं, 50 बच्चे हर रोज मुझे याद करते वहां बैठे हुए। आज महेंद्र सिंह के पास कुछ नहीं है। जितना पैसा, जितनी संपत्ति, जितना प्रोविडेंट फंड, जितना उसका पैसा था, एवरीथिंग इज बीइंग स्पेंट ऑन दोज चिल्ड्रन।
उन बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, आउट ऑफ दोज चिल्ड्रन, उन्हीं बच्चों में से ही हैज प्रोड्यूस्ड 6 डॉक्टर्स, ही हैज प्रोड्यूस्ड 6 वेटनरी डॉक्टर्स उन्हीं बच्चों में से। नाउ टेल मी, ये जो वेल्थ है ये मरेगी क्या? अब महेंद्र सिंह इस दुनिया से, मेरा ख्याल मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में गया हूं और मैंने ये महेंद्र सिंह अंकल को याद किया है। क्यों? और शायद जब तक मेरी जिंदगी रही मैं याद करता रहूं। Another person, he's a teacher. R.C. Jeevan, he is an ex-principal of DAV College, Kangra. 2 बार इनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। स्फीयर डायबिटिक, बहुत बुरा हाल, पांव चलते नहीं है, थोड़ी देर चलते हैं तो थक जाते हैं। अब वो पार्किंसन भी हो गई, इनको हाथ हिलते रहते हैं उनके। बट ही लिव्स इन पंचकुला, चंडीगढ़ के पास रहते हैं। एवरी सैटरडे ही एंड हिज वाइफ दे ड्राइव टू शिमला, एवरी सैटरडे मॉर्निंग ये शिमला जाते हैं। और एवरी मंडे वहां छोटा सा कमरा किराए पे ले रखा, वहां जाते हैं। इनका काम क्या है, वहां जाते हैं मॉल रोड पे, वो जो गेटी थिएटर के बाहर, वहां घूमते रहते हैं। और बच्चे लोग आते हैं एंड दे रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल सर, उनके आगे पांव छूते हैं, फिर उनको पूछते हैं बेटा तू क्या कर रहा है, एंड एवरी चाइल्ड टेल हिज स्टोरी, मैं ये कर रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया हूं, एंड ही इज हैप्पी सारा दिन। मैंने वी स्टार्टेड ए स्कूल, तो आई वेंट टू हिम, उनसे सलाह लेने के लिए गया। ही टोल्ड मी दिस, ही सेड, रमन वो जो 2 दिन मैं वहां शिमला में बिताता हूं, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मेरे को वो अगले 5 दिन मुझे पता नहीं चलता, मैं अपनी बीमारी भूल जाता हूं। बिकॉज व्हेन ए चाइल्ड कम्स एंड ही टेल्स, सर कांगड़ा के कॉलेज ने मेरी जिंदगी बदल दी, आई एम नाउ, मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं एसडीएम हूं, मैं ये लगा हूं, मैं आई एम ए बिग बिजनेसमैन। ही सेज दैट गिव्स मी सैटिस्फैक्शन। वो लोग आते हैं, मेरा पांव छूते हैं और मुझे बताते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करी। आई इन्वेस्टेड इन माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों में इन्वेस्ट किया। एंड थर्ड पर्सन, तीसरा जो है, हिज मास्टर टेलुराम, ए मैन हु वाज ए टीचर इन बर्मा। बर्मा से, ये मेरा गांव है नकोदर, ये वहां आए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके 3 साल बाद 1950 देयर वाज एन ऑर्डर पास्ड, नाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर्क विल बी डन इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो पहले उर्दू लैंग्वेज में होता था, और जो हमारे तहसीलदार थे उसको इंग्लिश नहीं आती थी। एवरी फ्राइडे वहां से रिपोर्ट जाना होता था टू द हाईअप्स। अब तहसीलदार को रिपोर्ट बनानी नहीं आती। एंटायर नकोदर, पूरा का पूरा टाउन, he searched for somebody who can draft a report for him in English. There was nobody. कोई नहीं था। Somebody told कि वहां एक रिटायर्ड प्रिंसिपल रहते हैं जो बर्मा से आए हैं, मास्टर टेलुराम, प्लीज गो टू हिम, आप उसके पास जाइए। Now this तहसीलदार goes to मास्टर टेलुराम and he tells his problem कि मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी रिपोर्ट बना दीजिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उन्होंने रिपोर्ट बनाई। Then he realized कि अरे यार, ये पूरा का पूरा शहर किसी को अंग्रेजी नहीं आती। This is pathetic. At the age of 80 years, 80 साल की उम्र में ये बंदा अपने घर से निकला। Knocked every door of Nakoda, every door, telling कि अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, एक स्कूल खोलिए, मैं आपके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। I want to teach English to the children. Nobody listened. 3 साल ये लगे रहे। 3 साल के बाद an old Sikh gentleman, he was a carpenter, वो मिला इनको, बाबा सिंह, वो सॉ मिल चलाते थे।
उन्होंने बोला कि यार मास्टर जी आ जाते, रोज घूमते रहते हैं, इससे मिलते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। मास्टर जी कितनी चाहिए? उसने बोला कि मुझे को सिर्फ 3-4 कमरों का एक स्कूल बना दीजिए। दैट वाज द टाइम जब वो सीबीएसई वैसे कुछ नहीं होता था। तो बाबा सिंह जी ने अपने 2-4 दोस्त इकट्ठे किए, उनके पास 2 एकड़ जगह थी, उन्होंने नकोदर रेलवे रोड के ऊपर एक स्कूल बना दिया। मास्टर टेलूराम वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। दिन में वो बच्चों को पढ़ाते, शाम को वो टीचर्स को पढ़ाते। शाम को वो टीचर्स को पढ़ाते कि अंग्रेजी पढ़ाई कैसे जाती है। उस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल होता था, एक आर्या स्कूल होता था, 2 स्कूल। उन स्कूल्स में जाके ही ऑफर टू द टीचर, कम टू माय स्कूल, आई विल टीच यू हाउ टू टीच इंग्लिश। आप फ्री में, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप फ्री में आइए, कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे स्कूल में आइए। द एथिक्स, उसके वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, वहां से निकला हुआ, उसी स्कूल से निकला हूं। वहां से मेरा एक दोस्त था, वो 4th क्लास में फेल हो गया, फेल्ड इन 4th स्टैंडर्ड। उसका नाम भी रमन विज, ही फेल्ड। आई वेंट, मैंने देखा कि हमारे घर के साथ ही उनके पिताजी की दुकान थी। मास्टर टेलूराम वाज स्टैंडिंग देयर, हाथ जोड़ के उसके पिताजी के पास खड़े हुए कि सर, वही वो सर, लाला जी मैं माफी मांगने आया हूं, मैं आपके बच्चे को पास नहीं कर सका, और आज मैं ये इजाजत लेने आया हूं, अगर आप कहें तो मैं रोज 1 घंटा आपकी दुकान पे आके इस बच्चे को पढ़ा दिया करूं। अब सरप्राइजिंग इसमें क्या है कि वो हर रोज आते, अपना पानी भी साथ में था, वो कांच की बोतल होती थी, ऊपर कॉर्क लगा होता था, अपना पानी भी साथ में लेके आते। ट्यूशन फीस ने अपना पानी साथ में कि मैं लाला जी आपका पानी नहीं पीऊंगा, इस बच्चा मैं पास नहीं करवा सका, मैं पास करवाऊंगा। इन 1 year ही मेड रमन डू 4th and 5th क्लास, 1 साल में दोनों पास कराई। दैट इज द लेवल ऑफ एथिक्स, वैल्यूज। दिस पर्सन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द जनरेशन। अगर आप आज भी नकोदर में जाइए, मेरी जनरेशन के लोगों से पूछिए अंग्रेजी कहां से सीखी, दे विल से मास्टर टेलूराम। Every individual. Don't you think this is wealth? कभी नहीं मरने वाली ये दौलत कभी मरेगी? This will not die. Keep asking yourself, wealth are creating. पूछते रहिए अपने आप से। Yes, you do create that materialistic wealth, but at the same time, create that wealth which is permanent, which is not perishable. That will keep that wellness intact. Thank you so much. This was all I have to tell you. थैंक यू रमन जी, बहुत ही सुंदर आपने सेशन लिया। और लाइफ में कहते हैं हेल्थ ही बहुत जरूरी है, वेल्थ का भी अपना रोल है, और वेल्थ का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी कैन नेवर अंडरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्थ इन लाइफ आल्सो, एंड वन हैज टू be very systematic and very organized. Since Raman ji has already conducted the session, in case any question is coming to your mind, we are open for the questions. You can air your questions even from at your place, otherwise come forward and you can ask the questions. Anybody can coin his question. Seeing none, perhaps everybody is interested to go for the lunch. When I have often observed that in lunch time normally people are not asking the question because everybody is interested to go for the lunch. So Raman ji, your session has been well accepted and everybody appreciated it. It is also apparent from the faces of the people that they comprehended the subject also, and with this we have no other point in the agenda. So I request the organizers to please come over here and to conduct the results. Thank you so much. Thank you very much, sir. It was really very thought-provoking discussion on the wealth, the real wealth. और आपने तीन जो बात के एग्जाम्पल्स लिए वो वाकई में आपको तो याद रहेंगे ही, पर हम लोगों को भी जिंदगी भर याद रखेंगे।
रखेंगे हम लोग उनको। थैंक यू सो मच। तो हम सब लोगों की तरफ से आप कानपुर आए, आपने वक्त निकाला, आप अपने पुराने साथियों के साथ भी हैं, पर यहाँ नए साथी भी और नए एडमायरर्स भी जुड़े, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो we'll just give you a small token of our love and affection and respect. So would you please come forward? Thank you. Thank you very much.